हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय इंग्लिश क्लास। दिस इज सचिन सांगवान हियर और आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोइट्री एंड दैट इज द टेल ऑफ कस्टर द ड्रैगन बाय ऑडेन नैश। बेसिकली ये एक टेल है जो स्टोरी की फॉर्म में है, दैट्स व्हाई वी विल कॉल इट बैलेड। क्या कहेंगे हम इसको? वी विल कॉल इट बैलेड। तो एक बैलेड है जिसमें एक ड्रैगन जो कस्टर जिसका नेम है उसकी स्टोरी बताई गई है। इट्स जस्ट क्वाइट लेंदी, तो हम इसको 2 वीडियोस में कंप्लीट करेंगे। लेट्स सी द फर्स्ट पार्ट हियर। सो लेट्स सी द पोएट्री नाउ। Belinda lived in a little white house with a little black kitten and a little grey mouse and a little yellow dog and a little red wagon and a really truly little pet dragon. Now the name of the little black kitten was Ink and the little grey mouse she called him Blink and the little yellow dog was sharp as mustard but the dragon was a coward and she called him Custard. Clear? तो यहाँ पे एक बेसिक आइडिया हमें मिल गया है। एक छोटी गर्ल होती है, दैट्स नेम वाज बेलिंडा हियर एंड शी इज लिविंग इन अ लिटिल वाइट हाउस। एक छोटे वाइट हाउस में वो रहती है एंड शी इज हैविंग सो मैनी पेट एनिमल्स विद हर, लाइक शी इज हैविंग अ लिटिल ब्लैक किटन, अ लिटिल ग्रे माउस शी इज हैविंग, अ लिटिल येलो डॉग, a little yellow dog she is having and a little red wagon. Wagon you know, a small जो एक गाड़ी होती है, that's called wagon. तो एक little red wagon भी उसके पास है and a really truly little pet dragon. और एक pet dragon भी उसके पास है. So all these things she is having with her. And really truly means really truly. तो उसके पास really truly एक pet dragon भी है. So all these things the girl is having and what are the name of these ones? इनके नेम क्या है? ये सेकेंड स्टेंजा में गिवन है। See that one. Now the name of the little black kitten was Ink. What was the name of black kitten? Black kitten का क्या नेम है? That is Ink. And the little grey mouse. Grey mouse का क्या नेम है? The name of the grey mouse is Blink. And here the little yellow dog. और जो बेलिंडा का छोटा little yellow dog है, that's name is Mustard because it is as sharp as mustard. That's why its name is Mustard. But the dragon was covered. जो dragon है वो covered है. That's why its name is Custard. तो इसका नाम क्या रखा उन्होंने? Custard रखा है. Dragon was covered. That's why its name is Custard. I hope these 2 stanzas are very clear to you. Now go to the literary devices. See the literary devices here. Little, 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 little and little. You can see so many times this little word is used in this one, right? And similarly in second stanza, here also you can see, here is also little, 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 right? So many are there. So many times little word is used in first and second stanza, so there will be repetition, right? Repetition will be here. Clear? Another one is simile here. You can see here, you may see, and the little yellow dog was sharp as mustard. As is used here and the comparison is given between this one. The sharpness is equal to the mustard. Whose sharpness? Sharpness of the dog is equal to the mustard here. और यहाँ पर as लगा के comparison हुआ है. So here will be simile. What will be? Which literary device will be here? Simile will be here. And another one is here, poetic license. Really or truly, this is not the spelling of anything. ये really or truly कोई spelling नहीं है, really truly this is. But poets जो होते हैं, जो poets होते हैं, उनको एक poetic license होता है that to create the musical effect in the poetry, they can change the spellings, right? So similarly happen here. यहाँ पर poet ने एक जो poetic musical impact है poetry में, वो उसको increase करने के लिए really or truly यहाँ पर use किया है. तो there will be poetic license. Next one is here oxymoron, pet dragon. You can see pet dragon. Dragon that is a wild creature. And ये क्या है? Dragon जो है ये एक imaginary creature है जो कि चाइना के माइथोलॉजी में पाया जाता है और ऐसा कुछ होता नहीं है और ये बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होता है और इसको पेट नहीं बना सकते हम, यूजुअली ये समझा जाता है, बट इट इज़ शोइंग हियर एज पेट. So the 2 opposite things are used together. So here will be oxymoron also. Which literary device will be here? Oxymoron. Oxymoron will be here. And see, lived, little. These kind of examples are also given here. So here will be alliteration. Which literary device will be here?
alliteration. Repetition of the consonant sound. Repetition of consonant sound in the beginning of the word, there will be alliteration. These two stanzas are very clear. Now go to the next one. Let's see third and fourth stanza now. Custard the dragon had big sharp teeth and spikes on the top of him and scales underneath. Mouth like a fireplace, chimney for a nose, and really truly daggers on his toes. Belinda was as brave as barrel full of beers, and Ink and Blink chased lions down the stairs. Mustard was as brave as a tiger in a rage, but Custard cried for a nice safe cage. So what the poet saying here? Poet is telling us that Custard the dragon had big sharp teeth. अभी यहाँ जो फोर्थ स्टेंजा है ये, इसमें कस्टर्ड को बताया गया है कि वो कैसा है. हाउ इज हिज अपीयरेंस. तो कैसा है देखने में कस्टर्ड? कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ. हाउ आर द टीथ ऑफ द कस्टर्ड द ड्रैगन? दीज आर शार्प. कैसे उसके टीथ शार्प हैं. एंड स्पाइक्स ऑन द टॉप ऑफ हिम. और क्या है उसके टॉप पे? स्पाइक्स. स्पाइक मीन्स शार्प नेल. राइट. आपने देखा होगा ड्रैगन्स के ऊपर ऐसे ट्राइंगल्स में कुछ होता है जो उसकी अपर सरफेस होती है, तो वहाँ पर वो क्या है? वो स्पाइक्स हैं. इट मीन्स शार्प नेल हैं. एंड टॉप ऑन द टॉप ऑफ हिम एंड स्केल्स अंडरनीथ. स्केल्स यू नो लेयर्स. व्हाट द मीन ऑफ स्केल्स? लेयर्स हियर. तो जो नीचे वाला पार्ट है उस पर लाइन्स हैं, लेयर्स हैं उसकी बॉडी के. एंड माउथ लाइक अ फायर प्लेस. हाउ इज द माउथ ऑफ द ड्रैगन? आपने देखे होंगे ड्रैगन्स कार्टून्स वगैरह में भी देखे होंगे. तो किस लिए फेमस होते हैं? उनके जो माउथ होता है उसमें से क्या फायर निकलती है. तो माउथ क्या है उसके? लाइक फायर प्लेस. एंड व्हाट आर द नोज? नोज क्या है? दैट इज चिमनी. इट मीन्स नोज से क्या होता है? उसके धुआं निकलता है. दैट्स व्हाई इट इज सिमिलर टू चिमनी हियर. And really or truly daggers on his toes. Really truly you know very well. Really truly it is daggers on his toes. Daggers you know. Daggers क्या होता है? What is daggers? Small sword. Small sharp sword. Small sharp sword. That is called dagger. स्मॉल शार्प जो स्वॉर्ड होती है, उसके जो टोज है नीचे, उसके जो पैर हैं वो कैसे हैं वहाँ पर? वो बिल्कुल ऐसे हैं जैसे छोटी छोटी क्या होती है? स्वॉर्ड होती है, छोटी तलवार होती है, डैगर, खंजर समथिंग. तो वो होता है सिमिलर टू दैट वन. दिस स्टेंजा इज क्लियर टू यू. नाउ द नेक्स्ट वन. बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ बियर्स. अब बेलिंडा और बाकी लोग कैसे हैं? बेलिंडा इज ट्रू ब्रेव. कैसी है बेलिंडा? बेलिंडा इज ब्रेव. एंड किसके जैसी ब्रेव है? बैरल फुल ऑफ बियर्स. बियर्स के ग्रुप के जितनी वो ब्रेव है. एंड इंक एंड ब्लिंक. Ink you know very well and Blink. We already have introduced the mouse and the cat we are talking here. Ink is the cat and Blink is the mouse here. Chase lions down the stairs. और वो दोनों के दोनों इतने ब्रेव हैं कि वो लायंस को भी चेस करके स्टेयर से नीचे उतार सकते हैं. इट मीन्स इतना तेज उसके पीछे उसको डरा के भगा सकते हैं कि जो लायन है वो भी, लायंस जो है वो भी नीचे उतर जाएंगे, भाग जाएंगे वहाँ से डर के. ये दोनों क्या है? इतने ब्रेव हैं. एंड मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज टाइगर्स. और जो मस्टर्ड डॉग है इट इज सिमिलरली ब्रेव एज द टाइगर्स हियर. जैसे एक रेज में एक टाइगर होता है, गुस्से वाला जो टाइगर होता है, इतना ज़्यादा ब्रेव, इतना ज़्यादा करेजियस कौन है यहाँ पर? मस्टर्ड है. बट यहाँ पर कस्टर्ड कैसा है? कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज. लेकिन जो कस्टर्ड है वो हमेशा टिमिड होता है, शाई होता है, डरता रहता है और हमेशा उसको एक सेफ प्लेस चाहिए होता है. सो व्हाट इज इज आस्किंग? इट इज आस्किंग फॉर द सेफ केज. केज मीन्स पिंजरा, जहाँ पे उसको कोई हार्म ना कर सके, उसको कोई देख ना सके, उससे कुछ पूछ ना सके. राइट. सो ऑल दीज अदर्स आर ट्रूली वेरी ब्रेव हियर. So what we found in this stanza, Belinda and others are very brave, but Custard the dragon is truly very timid or shy in nature. Clear this one? Now see the literary devices. You can see alliteration is here, spikes and scales. Repetition of SS is given, spikes, scale. So here will be alliteration. Which literary device will be here? Alliteration. Alliteration will be here. And chimney for a nose. Chimney for a nose. It means nose is compared here with chimney. Nose is compared here with chimney and without any as like so. So here will be metaphor. Which literary device will be here? Metaphor. जब बिना as like so की comparison given हो तो वहाँ metaphor होता है and similar thing is given here. Right? See the next one.
Mouth like a fireplace. Mouth like a fireplace. Like is used here, and mouth is compared here with the fireplace with the help of like. That's why here will be simile. अब यहाँ भी comparison given है, लेकिन किसकी हेल्प से हुआ है? Like की हेल्प से हुआ है. So here will be simile. Which literary device will be here? Simile will be here. Now see the next stanza. Here is simile like as brave as. Simile होगा as लगा के bravery को compare किया गया है. एज बैरल किससे कंपेयर किया गया है? फुल ऑफ बियर्स. किसकी ब्रेवरी को? बेलिंडा की ब्रेवरी को बियर्स की ब्रेवरी से कंपेयर करा गया है. तो यहाँ पे क्या होगा? सिमिली होगा. अनदर एग्जाम्पल इज ऑल्सो गिवन हियर, एज ब्रेव एज टाइगर्स. Here also mustard is compared with the tigers. The bravery of mustard is compared with the tiger with the help of as like as. With the help of as here. So here again will again be simile. तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? Simile हो जाएगा. Right? Which literary device will be here? Simile. Simile will be here. Right? And another one is here alliteration. Custard cried. Repetition of CC is given here. So here will be alliteration. Alliteration will be here. I hope these two are also very clear. Now go to the next one. Belinda tickled him, she tickled him unmerciful. Ink, blink and mustard, they rudely called him Percival. They all sat laughing in the little red wagon at the really truly cowardly dragon. Belinda giggled till she shook the house, and Blank sat weak, which is giggling for a mouse. Ink and mustard rudely asked his age, when Custard cried for a nice safe cage. So you have got the idea how they all treated to the little dragon. कैसे वो सब ट्रीट करते हैं little dragon को, ये इसमें गिवन है. Belinda tickled him. Belinda उसको क्या करती है? टिकल करती है. टिकल मीन्स टच द सेंसिटिव पार्ट ऑफ द बॉडी, और इस तरह से टच करना कि सामने वाले को हंसी आ जाए. राइट? दिस इज कॉल्ड टिकल्ड, यानी कि गुदगुदाना. टिकल मीन्स गुदगुदाना. तो उसको टिकल करती है. शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल. अनमर्सीफुल मतलब उसमें मर्सी नहीं करती है, वो कहता रहता है लेकिन फिर भी वो नहीं सुनती है, कंस्टेंटली उसको टिकल करती रहती है. इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे रूडली कॉल्ड हिम पर्सिवल. और जो इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड हैं, इट मीन्स कैट, माउस एंड डॉग. दीज आर, वो उसको क्या कहते हैं? रूडली कॉल्ड हिम पर्सिवल. Percival was a knight in history who got defamed because of his cowardice behavior. एक हिस्ट्री में एक नाइट हुआ करते थे कभी, जो अपने cowardice behavior की वजह से डिफेम हो गए थे, और उन्हीं का एग्जाम्पल देके उसको यही नाम से चिढ़ाते रहते हैं. They all sat laughing. क्या करते हैं वो सारे के सारे? They all sat laughing. हंसते रहते हैं उस पर. In the little red wagon. और जो little red wagon थी बेलिंडा के पास एक छोटी, उसमें सारे बैठते हैं और एंजॉय करते हैं, उसके ऊपर उसकी हंसी उड़ाते हैं. At the little really truly cowardly dragon. किस पर हंस रहे हैं वो? At the cowardly dragon. Really truly. I hope this stanza is clear. See the next one. Belinda giggled till she shook the house. और जो बेलिंडा है वो इतना तेज तेज हंसती है. गिगल मीन्स लाफिंग लाउडली, जोर जोर से हंसना. इतना तेज हंसती है कि जिसका जो हाउस है वो भी शूक हो जाता है, हिलने लगता है, ट्रम्बल करने लगता है. व्हाट इज गिवन हियर? हाइपरबोले. ये हाइपरबोले का एग्जाम्पल है जहाँ हम चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं. राइट? हाइपरबोले इज हियर लिटरेरी डिवाइस. इट इज एक लिटरेरी डिवाइस है हाइपरबोले, यानी वो इतनी तेज हंसती है कि जो उसका हाउस है वो शूक करने लगता है, ट्रम्बल करने लगता है, हिलने लगता है. एंड ब्लिंक सैट वीक विच इज गिगलिंग फॉर अ माउस. जो ब्लिंक है वो कि वीक कहता है, यहाँ पे वीक वर्ड यूज़ करा गया है, यानी कि वीक जैसी आवाज़ निकालता है. जो ब्लिंक है, माउस है, वो वीक वॉइस निकालता है, जो किसको डिफाइन करते हैं यहाँ पे? गिगलिंग ऑफ माउस. व्हाट इज वीक हियर? गिगलिंग ऑफ माउस. जो माउस की गिगलिंग होती है, हंसने की जो आवाज़ होती है, दैट इज कॉल्ड वीक. इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क्ड हिज एज. और जो इंक और मस्टर्ड हैं वो दोनों के दोनों उसको चिढ़ाने के लिए उसकी एज पूछते हैं उससे, दैट हाउ ओल्ड ही इज़. क्योंकि वो बड़ा हो गया था अभी, और फिर भी वो क्या कर रहा था? अपनी एज के हिसाब से वो बहुत ज़्यादा डरपोक था, बहुत ज़्यादा टिमिड और शाई था. When Custard cried for a nice safe cage. और वो रोना शुरू हो जाता है, क्राइड करने लगता है. किस चीज़ के लिए? For a nice safe cage. कि उसको केज में बंद कर दिया जाए जो किसके लिए नाइस हो और सेफ हो. I hope these two stanzas are clear. Now see the literary devices. One we have already discussed.
ये जो लाइन है पूरी, बेलिंडा गिगल्ड टिल शी शूक द हाउस, ये हाइपरबोले है यहाँ पर. एंड सी द अनदर वन हियर, tickled word is used twice, tickled. So here will be repetition will be here, right? And Percival, the rude behavior they call ink, blink and mustard, they rudely called him Percival. Percival से कंपेयर करा गया, किसको कंपेयर करा गया है यहाँ पर, किसको बताया गया है यहाँ पे, जो हमारा ये कस्टर्ड है, कस्टर्ड द ड्रैगन, इसको किससे कंपेयर करा गया, पर्सिवल. इसकी जो क्वालिटीज़ हैं उसको, एक जो कोवार्डिस की क्वालिटी है उसको एक ह्यूमन बीइंग की से कंपेयर करा गया है. सो हेयर विल बी व्हाट, हेयर विल बी पर्सनिफिकेशन. तो कौन सा लिटरेरी डिवाइस यहाँ पे हो जाएगा, पर्सनिफिकेशन विल बी हियर. Personification will be here. And weak is a kind of sound, और जहाँ भी साउंड यूज़ होता है वहाँ पे ओनोमोटोपोइया जो एक पोएटिक डिवाइस है वो यूज़ होता है. सो हियर विल बी ओनोमोटोपोइया. Onomatopoeia will be here. And another one is here. See, last line is repeated. Custard cried for a nice safe cage. Already we have learned this line in the previous stanzas. पहले जो stanzas गए हैं उसमें हम ये लाइन कर चुके हैं. That's why it is called repetition. तो यहाँ पे कौन सा यूज हुआ है literary device, repetition is here. Repetition is here. And another one is here. She shook. She shook. SS is repeated. SS is repeated here. So again here will be alliteration. Alliteration will be here. Which literary device will be here? Alliteration. These are clear here. Now go to the next one. Suddenly they heard a nasty sound, and Mustard growled, and they all looked around. Mew, cried Ink, and oh, cried Belinda, for there was a pirate climbing in the window. Pistol in his left hand, pistol in his right, and he held in his teeth a cutlass bright. His beard was black, one leg was wood. It was clear that the pirate meant no good. So an incident is describing here. एक incident यहाँ पे describe करा गया है in these stanzas. Suddenly they heard a nasty sound. अचानक से क्या होता है जब वो लोग मजाक उड़ा रहे होते हैं, किसका, कस्टर्ड द ड्रैगन का, वो लोग सब enjoy कर रहे होते हैं, तो सडनली उनको क्या सुनाई देता है, एक nasty sound. Nasty means unpleasant. एक अनप्लीजेंट सा साउंड सुनाई देता है. एंड मस्टर्ड ग्रॉल्ड, द डॉग था मस्टर्ड, दैट स्टार्टेड ग्रॉलिंग, वो गुर्राना शुरू कर देता है. एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड, वो सब लोग चारों तरफ देखना शुरू कर देते हैं. म्यू क्राइड इंक, इंक स्टार्टेड क्राइंग म्यू एज इट वॉज अ कैट. एंड बेलिंडा क्राइड ओ, बेलिंडा क्या कहती है, ओ की आवाज़ निकालती है, और जो इंक होती है, जो यहाँ पर कैट होती है, वो म्यू का वॉइस निकालती है. फॉर देयर वॉज अ पायरेट, एंड हु वॉज देयर, There was a pirate. Pirate you know very well. जो sea robbers होते हैं, जो समुद्री लुटेरे होते हैं, dacoits होते हैं, that's are called pirates. So a pirate was there and it was climbing in the window. He was climbing through the window, and window is used here for window. Window is used here for window. यहाँ विंडो को शॉर्ट करके विंडा करा गया है ताकि ये बेलिंडा के साथ राइम करे. जस्ट टू राइम इट विद द बेलिंडा, विंडा इज यूज हियर, अदरवाइज इट इज विंडो. अगेन पोएटिक लाइसेंस यहाँ पर यूज हुआ है. सो एक पैरट था जो कि विंडो से क्लाइम कर रहा था, उसको देखकर जो इंक है वो म्याऊ जो वॉइस है वो निकालना शुरू कर देती है, और जो बेलिंडा है वो ओ का साउंड क्रिएट करती है, और जो मस्टर्ड है वो ग्राउल करने लगता है. दिस थिंग्स हैपन इन फर्स्ट दिस वन. एंड सी द नेक्स्ट वन. पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट. एंड हाउ वॉज द पायरेट, पायरेट के लेफ्ट हैंड में भी पिस्टल होती है और उसके राइट हैंड में भी पिस्टल होती है. इन बोथ ऑफ द हैंड ही इज हैविंग पिस्टल. एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ कटलास ब्राइट. एक कटलास, कटलास मीन्स अ स्मॉल डैगर. डैगर इज हियर कटलास, राइट. एक कटलास होता है उसके कहाँ पर, टीथ में, अपने दांतों में उसने पकड़ा हुआ होता है, जो ब्राइट होता है, बहुत शाइनी होता है. डैगर खंजर होता है, एक स्मॉल स्वॉर्ड होती है. हिज बियर्ड वॉज ब्लैक. एंड हाउ वॉज द बियर्ड ऑफ द pirate here, his is used here for pirate.
पायरेट की जो बियर्ड होती है, दाढ़ी होती है, वो कैसी होती है? ब्लैक इन कलर. वन लेग वॉज वुड, और उसका एक पैर जो होता है वो वुड का होता है, लकड़ी का होता है, राइट. एंड इट वॉज क्लियर द पायरेट मीन्स नो गुड, और ये बिल्कुल क्लियर था क्योंकि वो विंडो से आ रहा था दैट द पायरेट्स इंटेंशन वॉज नॉट गुड. पायरेट्स इंटेंशन वॉज नॉट गुड, कि जो पायरेट था उसके इरादे अच्छे नहीं थे. आई होप दीज टू आर वेरी क्लियर. नाउ सी द लिटरेरी डिवाइसेस ऑफ दीज वंस. सी दे and they is repeated here, and here pistol is repeated, so repetition is used. Which literary device? Repetition. Repetition is used. And sound is used here like mu, o, and we have already described जब भी sound create होता है किसी चीज़ का, there will be onomatopoeia. So here will be onomatopoeia. Right, onomatopoeia will. And another one is here, he held his. He held his. Repetition of HHS is given here, so here will be alliteration. Alliteration will be here, right? Alliteration is here, and one more repetition you can see, was. Was repetition is also given, so here will be repetition again. यहाँ भी repetition हो जाएगा, repetition हो जाएगा. was repeat हुए हैं, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आपका repetition. I hope all the literary devices, stanzas are very clear to you. Remaining part we will do in the next video. Till then, take care and keep learning.